नमस्कार दोस्तों, अजय नुक्कड़ पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम काव्य कोना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार लाते हैं एक नई तरीके की विधा, नई तरीके की रचनाएं और नए कहने एक सुनने वाले। कविता हो, शायरी हो, गीत हो, गज़ल हो, लेकिन इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक अनोखा और अनदेखा। जी हाँ, बहुत कम लोग कहने वाले हैं कहानियाँ, बहुत कम लोग कहते हैं दास्तान गोई। तो आज के कार्यक्रम में काव्य कोना और पीएलजी के सौजन्य से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक प्रोग्राम जो भरा हुआ है कहानियों से, किस्सों से, दास्तान गोई से। बस इसको सुनिए, देखिए, सराहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि आपको हर सप्ताह नए कार्यक्रम मिलते रहें आपके इनबॉक्स में। हम लेकर आते हैं आपके लिए हर बार नया कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के लिए हम आपको लिए चलते हैं पीएलजी के स्टेज पर। बहुत जल्द In modern time, the art of storytelling is effectively used by salesmen, marketing professionals, advertising agencies, trainers, etc., etc. And this is because I would like to quote Joe and Shane as they wrote in their book, The Storytelling Age. Good stories surprise us, they make us think and feel, they stick on our minds and help us remember ideas and concepts in a way that a PowerPoint cramped with bar graphs never can. Right? Do we have to learn a story to tell? I don't think so. Everyone has stories to tell. And if everyone has stories to tell, then why not tell? Do we have to learn how to tell? Why should we learn storytelling when it predates writing? The earliest form of storytelling were only oral combined with gestures and expressions. And that's exactly what is the art of storytelling. It's only in the midst of the modern gadgets that we lost the touch on this art. We need to rediscover the art of storytelling. And that's where PLG is here to provide a platform to hone our skills, learn from each other, learn from some of the masters of this art. And we have here with us one such master of the art, Anna Fansett, who has won accolades in storytelling all over the world. And she has been kind enough to agree to be the chief guest at this program. We welcome you, Anna, in this event, and we would like to hear you after some time, a story too at the end of the program. Please welcome her with a big round of virtual clap. We have storytellers from Canada, UK, India, Middle East, and members of PLG here tonight to kindle this virtual stage of PLG. PLG has started this online meets to mitigate the effects of the lockdown on the psyche of the people by bringing smiles on distressed faces. We have been quite successful in our endeavors. This is the sixth such program, and we are thankful to our patrons who have helped us in our various efforts. And thanks to once again Mr. Habib Nadeem for yet another beautiful card design. And of course, thanks to all the audience. As J.K. Rowling said, no story lives unless someone wants to listen. So, without wasting any more time, I will hand over mic to the anchor of today's event, a math genius by brain, but a poet and writer by heart. Her poems, stories, and articles have been published in many magazines. She has won many prizes in poetry and literature. I think it's a no-brainer to guess the big clue was math genius. Ladies and gentlemen, it's none other than Anshu Priya. Please welcome her with a big round of virtual clap. Thank you. Thank you, sir. Thank you for such a nice introduction. I'll go on with PLG
with some lines. विहिल जी के प्लेटफॉर्म में आकर जाने कितने शायर मुतासिर हो गए, जो लिखते ही नहीं थे कभी वे भी कमाल के शायर हो गए. Wow. This story is really dear to me because this was the first story I wrote at the age of 7, and it is a pleasure to share it with all of you today. Is the sound okay? Sound is not coming, sir. I can hear clearly. Good evening, one and all. So I'll continue. Zuzubis go to the Mathura souk. It was a day before Eid and the souk was crowded. The Zuzubis decided to go to the Mathura souk for their Eid shopping. They took a taxi and drove all market and walked along the corniche. A huge splash. Dolly was a very fun-loving animal and loved to play such pranks on her friends. Zizibis decided to move on to continue to the zoo and leave her behind. Jumbo the elephant was tempted by all the food in the cafeteria right outside the zoo. Zizibis knew without a doubt that now he would have his favorite banana milkshake and shawarma. Jumbo was the strongest among them all and loved food very much. So, while the Sisyphus went to the zoo, Jumbo continued towards the cafeteria. Bang came a noise. Jenny the giraffe had banged her head against the low entrance door of the zoo. Granny was quick to realize it. Granny was the wisest of all of them, and the Sisyphus often went to her to ask her for her advice. Once in the zoo, Nunu the monkey and Bunny the rabbit rushed all around the shops, fascinated by all the antique toys lying all around. Jenny was very stylish and she loved to dress up, so she selected a gown for herself. Sheru the tiger selected a traditional Omani dress, whereas Nunu got a cap for himself. Granny slowly inspected all the binoculars, telescopes, and compass. The Zuzbir had a hearty laugh looking at all the little miniature animals. In the end, they all selected something or the other for themselves. Meanwhile, outside, Jumbo saw a little boy crying. He asked him his name. The little boy said that his name was Abdul. Further, Jumbo inquired why he was crying. To this, he replied that his parents were ill and he did not have money to buy medicines for them. Moreover, he also needed more food and clothes since Eid was coming up. Look up, he suggested, let us all give our money to him. And so they did. In the end, they came out of the souk empty-handed, but they were all very happy because they had helped somebody others. So what we get from this story is that there's a lot of joy in giving to others, and which is exactly the spirit of Ramzan. Thank you.
Thank you, Sana. It was a very good story with a very good moral. Now, I would like to welcome Likhita, जिसके बारे में ऐसे कहते हूँ, पीएलजी के आकाश पर चमकता हुआ एक दिया, शब्दों की जादूगरी जानती है हम सबकी लिखिता. She is such a talented writer. Her words make your heart feel elated. She is small by age, but while writing, she goes the extra mile. Listening to her creation is always worthwhile. Her words are soulful and pure. She is a shining star of PLG for sure. Please welcome Likhita. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot. A very good evening to everyone. I'm glad to see you all here, and I'm really happy for the new phase of our live meetings, a storytelling one. I really appreciate that. So today, I have a little story to share. I don't exactly know if I should put this as based on a true incident story or a cooked up one, but I really hope you will like it. It was around mid of October, a hazy morning in a little city somewhere in the south of India. There was no sight of the sky at all, as there were clouds all over, like a grey blanket made of wool. There was thunder, a deep rumble of thunder. There was a cool wind blowing too, and in a distance, we can see an outline of the lush green mountains. They were all even, all hugging the sky. There were signs of rain. It was going to rain. The street was almost empty, except for one guy. He was on his bike. He was pacing in an unhealthy speed. He was in a rush to go somewhere. He had a flannel shirt, and due to his speed, his hair and shirt were flying backward. His face was scrunched up. He was worried. There was more lightning and thunder, but he did not stop. He kept going faster. But then, suddenly he slowed down. Right in the middle of the street, a little far away, he saw a silhouette. Somewhere in the middle of the street. It looked like that someone was waiting for him. The guy went closer and found that the silhouette belonged to an angel. Very weird. An angel right in the middle of a street, in a city not known by a lot of people. Why, what, who? Lots of questions were racing in the man's head. The angel just stood there, was staring at him. The man got off his bike, he gingerly approached it, and before he could ask anything to the angel, it just placed its hand over the man's head and said, "You shall find happiness." The angel handed a little bundle to the man and said, "Cherish it." Saying that, the angel disappeared, leaving no trace that it was present there a minute ago. The man carefully opened the bundle, only to find a beautiful baby, nicely wrapped in silks, and the baby was playing with its feet. It was a very good sight to see, and the man was really happy. Now, the major twist of this story is, the man here was my father, and the baby was me, and this story was narrated every single day by my father when I was young. So, Wow, that's to so one nice. certain extent, I believed every single word of this story until I realized I was fooled. You make smile everybody, Likhita, a very nice story. Now let's welcome मुनावर रहमान साहब. इनकी तारीफ में क्या शब्द कहूं? ये शख्स शब्दों को सांस बनाते हैं, फिर लफ्जों को ऑक्सीजन बनाकर सबके दिलों में पहुंचाते हैं. आपके कलम की इंतजार में उफ कागज भी तरसते हैं. प्लीज वेलकम मुनावर रहमान साहब. और बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया. इतने अच्छे अल्फाज से आपने नवाज दिया. तो इतनी अच्छी कहानियां सुनने के बाद तो मुझे लग रहा कि मेरे अल्फाज बहुत कम हैं. खासकर लिखिता
जो अभी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी। तो टाइम कम है। मेरी कहानी का शीर्षक है हे भगवान दया करो। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है। उस जमाने में मेरी नानी जान की उम्र लगभग 65 साल होगी। सफेद साड़ी, पांचों वक्त नमाज पढ़ना, अल्लाह के फजल से हज कर चुकी थी। बेटे बेटियों की शादी से फारिग, नवासे नवासियों और पोते पोतियों की लहलहाती खेती में बागबानी के उमूर अंजाम दे रही थी। उम्र के उस पड़ाव में कभी कभी तबीयत का खराब हो जाना एक आम बात हुआ करती है। हमारे घर के करीब एक मस्जिद है। मगरिब की नमाज के बाद अक्सर वहां पर कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को नमाजियों की दुआएं दिलाने लाते हैं। उसमें हर धर्म से वाबस्ता लोग होते हैं, कुछ अमीर और कुछ गरीब भी होते हैं। मस्जिद के बाहर एक बड़ा सा काला पत्थर मौजूद है, जिस पर छोटा पत्थर घिसकर एक दवा बनाई जाती है। अक्सर देखा गया है कि दुआएं लेने के बाद और उस पत्थर से बनी दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद लोगों को शिफा भी मिली है। कभी कभी मेरे घर के करीब मौजूद लोगों में से कुछ लोग, खासकर औरतें, मेरी नानी जान से दुआएं लेने आती थीं। ईद, बकरीद, मुहर्रम, छठ, दिवाली और होली के प्रसाद भी अपने अपने वक्त से आ जाया करते थे। हमारे घर से भी इसी तरह पड़ोसियों के यहाँ तोहफे जाया करते थे। हम तमाम लोग बचपन से ही खमौनी, पुआ इत्यादि का स्वाद का भी कभी आनंद लेते आए हैं। ईद, बकरीद और होली, दिवाली भी मनाते आए हैं। नानी जान जिंदगी के उस दौर में दाखिल हो चुकी थी जिस दौर में दाखिल होने की दुआएं नानियां और दादियां अक्सर अपने बाद वाली पीढ़ियों को दिया करती हैं। एक बार का वाकया है कि नानी जान की तबीयत खराब हो गई। मुझे ही ये सआदत हासिल हुई कि मैं उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाऊं। लिहाजा मैंने एक रिक्शा लाया और तब तक वो बेटियों और बहुओं की मदद से बुर्का पहन चुकी थी। हम दोनों रिक्शा पर सवार होकर चल दिए। रिक्शा चालक से गुजारिश किया कि जरा संभल कर रिक्शा चलाएं। बावजूद रिक्शा चालक के एहतियात के सड़क के गड्ढों ने मुझे अक्सर शिकायत करने का मौका दे ही दिया। भाई जरा संभल कर। रिक्शा चालक बदले में कभी मुड़कर इस अंदाज से देख लेते मानो उसकी आंखें सड़क की कहानी बयान कर रही हूं। मैं भी जानता था आमतौर पर सड़क के गड्ढे बीमारों, कमजोरों और बुजुर्गों के लिए तकलीफदेह होते हैं। बहरहाल हम लोग डॉक्टर के यहाँ पहुंचे और डॉक्टर खाने की रसूमात अदा हुई। दवा वगैरह लेकर वापस रिक्शा से घर की तरफ चल पड़े। ज़हनी तौर पर हम तीनों, मैं, मेरी नानी जान और रिक्शा चालक, इस बात के लिए तैयार थे कि सड़क के पेचोखम से नबुर्द आजमा होना है। जो भी हो, रिक्शा घर की तरफ बढ़ता गया। तकरीबन आधा रास्ता गुजर चुका होगा। एक मंदिर के सामने से रिक्शा गुजर रहा था। वहां पूजा अर्चना में श्रद्धालु मसरूफ थे। घंटे की टन और भजन की श्रद्धा माहौल को एक मानी दे रही थी। मेरी नानी जान और गालिबन रिक्शा चालक का ज़हन उस मंदिर के भजन कीर्तन की तरफ शायद चला गया होगा। उसी वक्त एक सड़क के गड्ढे से रिक्शा के पहिए का ऐसा साबका पड़ा कि रिक्शा उलट गया। मैं तो सड़क पर गिरकर उसी लम्हा खड़ा हो गया और नानी जान पर पूरी तवज्जो से अपने पूरे वजूद को मरकूज कर दिया। रिक्शा चालक भी अपने आप को संभाल चुका था, लेकिन मेरी नानी जान सड़क पर से खुद को उठा नहीं पाई। वो बहुत तकलीफ में थी। कभी कभी उनके आंखें खुलती और कभी बंद हो जाती। उसी लम्हे
मंदिर की तरफ से एक हुजूम हम लोगों की तरफ दौड़ा आया। वहां पर अधिकतर लोग मंदिर से ही आए थे। कुछ एक राहगीर वहां पर मौजूद होने पर ही अधलेटी अवस्था में थी। गालिबन वो शख्स एक पुजारी होगा या श्रद्धालु, कहना मुश्किल है। उसके हाथ में एक लोटा था और उसमें शायद कोई पवित्र जल रहा होगा। उस लोटे के जल का मेरी नानी जान के चेहरे पर उस शख्स ने इस दुआया अंदाज से छिड़काव किया मानो मुझसे ज्यादा वही शख्स नानी जान का शुभचिंतक हो। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बिल्कुल। वहां पर मौजूद सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान दया करो। ऐसा लगा जैसे दिल की पूरी गहराइयों से दुआ मांगी जा रही हो। पूरी भीड़ की भगवान से दया की दरखास्त और हम लोगों के प्रति वो न भूलने वाला स्नेह और मदद आज भी हमारे मन में उतना ही ताजा है। कुछ मौजूद औरतों ने मेरी नानी जान को सहारा देकर रिक्शा पर फिर से बैठने में मदद किया और हम लोग घर वापस आ गए। अब मैं जिंदगी के इस पड़ाव पर देश और दुनिया के लिए उसी पैगाम को फिर से दोहराना चाहता हूँ। वो ये है, हे भगवान दया करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुनव्वर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कहानी। बहुत अच्छे। आज लैंग्वेज में बहुत बड़ी बात है क्या किस तरह, बहुत बढ़िया। तब और आज आपको के- याद ही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्मिक कहानी, जहाँ पूरा देश दंगों के बीच फंसा रहता है, धर्म के आड़ पे नई नई विभीषिकाओं को अंजाम देता है। उस बीच आपकी कहानी बहुत ही सुकून देने वाली है। आपकी कहानी को सुनकर यही कह सकती हूँ कि तुम सीसी में जमजम रख लो, मैं अपने घर गंगा जल रख लूं। तुम मुझे आजान सिखा देना, मैं तुम्हें आरती सिखाऊंगा। इतनी बड़ी भाईचारा की बात आपने सिखा दी अपनी कहानी बहुत के बढ़िया द्वारा। अंशु जी, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। Next participant is Snehjot Kaur. Her book Princess was one of the best selling in June 18 on Amazon. Thank you, sir. She has won many prizes and awards. लिखते रहिए, गुनगुनाते रहिए आप, अल्फाजों से उपवन सजाते रहिए आप। प्लीज वेलकम स्नेहजोत कौर। नमस्कार मेरी तरफ से सबको। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, तो समय ना गवाते हुए मैं अपनी कहानी पे आऊंगी, क्योंकि हमारे पास समय की यहाँ पे बहुत ज्यादा पाबंदी है। तो सर्दियों के दिन थे और कुछ करीब 19-20 साल की उम्र की एक लड़की अपने घर में कुछ बहुत ज्यादा संजीदा रूप में तैयारियां करवा रही थी। उसकी तैयारियों की जो एक तरीका था, जो एक सलीके से वो तैयारियां करवा रही थी, उससे ऐसे लग रहा था कि मानो उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा दिन हो। अचानक गेस्ट लिस्ट चेक करते करते वो जैसे ही घर के बरामदे से अंदर जाने लगी तो उसका पैर फूलों की एक टोकरी पे जा टकराया और इस पे उसने सबको गुस्सा करते हुए बोला कि तुम लोगों को समझ नहीं आता कि कितना बड़ा दिन है। एक तो ना यहाँ पे कोई काम ही नहीं करना चाहता घर में। ये कह के जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ने लगा, अचानक एक बुजुर्ग अंदर आया और उसने बोला, बेटा बस 5 मिनट में सब हो जाएगा, आप जाइए, आप बाकी काम कीजिए। जैसे कि उस बुजुर्ग ने वो छिपे हुए आंसू जो उसकी आंखों में थे वो देख लिए थे। इस तरीके को मानते हुए कि शायद जो वो कर रही थी वो गलत था या उसका ये सलीका गलत था, वो एकदम से उस सब को छोड़कर अंदर चली गई और अंदर जाकर जैसे ही वो अपने रूम में गई, उसकी अचानक से जो नजरें थी अपने बाबा की और अपनी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। उसको याद आ रहा था कि बाबा उसको अक्सर बोला करते थे कि देखना जिस दिन तेरी शादी होगी ना, एक एक रिश्तेदार को बुलाऊंगा, उस रिश्तेदार को भी बुलाऊंगा जिसको तेरे दादा ने 20-20 साल से घर में आने तक नहीं दिया। और वो उस बात पे अक्सर पूछती कि अरे पापा
अगर हम उनको बुलाएंगे तो दादाजी तो गुस्सा कर जाएंगे। तो उसके पापा हमेशा उसको समझाने के लिए बोलते, अरे नहीं बेटा, तेरे दादा बस थोड़े से कठोर है, लेकिन उनका मन बिल्कुल कोमल है। अगर हम रिश्तेदारों को आगे से बुलाएंगे और वो आएंगे ना, तो देखना तेरे दादाजी उन्हें जरूर अपने गले से लगा लेंगे। ये बस थोड़ी बड़े लोगों की आदतें होती हैं कि जब कोई गलती हो जाती है तो वो मानना नहीं चाहते और फिर रिश्ते टूटते जाते हैं और जुड़ना नहीं। तो बेटा, तोड़ने वालों में होना है, तोड़ने वालों में नहीं। वो इस बात को याद करके हंस दी और फिर गेस्ट लिस्ट चेक करने लगी। वो इस बात को पूरी तरह से श्योरिटी में लेके आ रही थी कि जो गेस्ट हैं वो 8 गेस्ट जो उसके बाबा बुलाना चाहते थे वो सब उस लिस्ट में हैं। थोड़ा समय गुजरा, वो समय आया जिस दिन वो बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन के लिए वो इतने टाइम से तैयारी कर रही थी। और एकदम तैयार होके उसने मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंची, जैसे कि उसे उसके सपनों की दुनिया से कोई खींच कर ले आया हो। हाँ, आज बड़ा दिन तो था, लेकिन आज उसकी शादी नहीं थी। हाँ, आज फूल तो आए थे, लेकिन वो फूल उसकी वरमाला के लिए नहीं आए थे, वो फूल आए थे उसकी बाबा की फोटो के ऊपर चढ़ाने के लिए। आज उसकी शादी नहीं, आज वो दिन था जो उसके धर्म में प्राणी को आखिरी विदाई माना जाता था। आज उसके बाबा की बरसी थी। बाबा की फोटो पे लगे हुए वो फूल देखकर कुछ पल के लिए वो भी टूट सी गई, टूटकर फिर कहने लगी कि बाबा देखो, नहीं थे, अब देखो जब वो मान रहे हैं तो आप यहाँ हो ही नहीं। अचानक से वो ऐसे रोई कि जैसे मानो टूट के बिखरने ही वाली हो। लेकिन फिर पीछे से एक बुजुर्ग औरत आई, उसने उसको वैसे ही गले से लगाया जैसे उसके बाबा आज होते तो लगाते, और बोली, बेटा तुमने तो हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा है, तुम टूट नहीं सकती क्योंकि तुम अपने बाबा की बेटी हो। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे। Very nice, Sunil. बस रियली गुड ट्विस्ट, बहुत अच्छा ट्विस्ट था जब आपने वो बताया कि आज उसकी शादी नहीं थी। बेहतरीन। Very nice, very nice. बहुत Very अच्छी nice. गाना, very nice, with a very nice message. So next we want to welcome Sakil Narmawala, who is an architect by qualification and poet by heart. His story is so interesting and motivating that after attending and listening to poet in PLG, he has started writing, and he has first participated in PLG in 2019. तो आपके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि उदासी में मुस्कान की उल्लास है आप, निराशा में सृजन का विश्वास है आप. Definitely, PLG is an amazing creative platform, in every word inspiring each of us. Just vow to pen our lines better than a now. Creativity is the best part, you know. That's really helping us to grow, and that is the work done Wow, by PLG. so nice, so nice, so nice. Because Nice. the person who has only listened and he has become a poet, so that's whole credit goes to PLG. That's really nice. Thank you, Anshu Priyaji. Really, I agree with your words, and it has been a great source of motivation, this group. Good evening to all. Good evening. Sometime back, I embarked on a journey of writing short stories under the title The Untold Stories. Today's story is one such untold story. It was the month of Ramadan. Azhar hurried through the crowded streets of Old Delhi to reach home in time for iftar. You should not delay breaking of fast, may it be with a glass of water or a piece of date. His mother's words from his childhood echoed in his ears. Realizing that he would not reach home in time, he uncontrollably walked into his parents' home, which was on the way, to join for iftar. His father, Haji Qasim, took a quick glance at him and returned his gaze on the dining mat, where he was sitting with other family members for iftar. Seeing this
unwelcoming gesture, his hasty steps managed to stop barely few strides inside the door which remained open throughout the day. Azhar's mother Amina Bibi, who still had some affection for him, also reluctantly turned her face after having a quick glance at him. Azhar's sister Zoya, her husband Yunus, and the kid sat along with the aged parents for iftar. Azhar was heartbroken. Even a guest who would walk in at the time of iftar would be welcome to join for the meal. And here, he was their own son. Controlling his emotions, Azhar walked to the water pot, drank a glass of water, and silently walked out of the house. As siblings, Azhar and Zoya were very attached and grew up as friends. Now Zoya stayed with her parents in their house along with her husband Yunus and their child. For Haji Qasim and Amina Bibi, it was utmost important to help their daughter sustain her married life. On the other hand, Azhar, who was also the black sheep among the 4 siblings, now lived with his in-laws. Azhar's wife Aisha, in spite of being a very accommodative person, found it extremely difficult to stay in the house where her husband was not shown respect and had moved to her parents' house 6 months back. A lady of immense character and strong willpower, she was playing a pivotal role in transforming Azhar's life. Although circumstances had made her stay away from her in-laws, she was the one who kept reminding Azhar of his duties towards its parents. Azhar had grown up in company of notorious friends in the neighborhood, and his life was full of several vices. However, his behavior was gradually changing after marriage, but it was never easy to get rid of old habits. Like many youths in the neighborhood, both Azhar and Yunus found it difficult to make their ends meet after marriage. They were actively pursuing their hunt to find job in Gulf countries. Next morning, Azhar's elder brother based in Dubai informed on a job opening in his company. That night, Haji Qasim called Azhar and instructed that Yunus be given preference for the job. This is the least Azhar could do for his sister. Moreover, he was also trying to arrange for funds for tickets and other expenses to secure the job for Yunus. Azhar kept listening to his father, failing to understand why son-in-law was given more preference than son. Several months later, with persistent efforts, Azhar also managed to secure a job in Gulf and soon moved to the new place with his wife and child. Back home, Haji Qasim and Amina Bibi struggled through the challenges of old age, living with their limited means. However, the fact that their daughter was well settled comforted them. One morning, they were elated to receive notification on their phone of 10,000 rupees money transfer to their account. Their joy had no bounds. Haji Qasim and Amina Bibi kept looking at the message again and again. Amina Bibi held on to the phone in anticipation of a call. Just then, the phone rang. Amina Bibi hurriedly answered the call, but tears rolled out of her eyes on hearing the voice on the phone. She could not speak a word and kept on crying. Hello, hello, hello. The voice on the end went on. It was Azhar, desperately waiting to hear his mother's voice. Thank you. Very nice story. Lovely story, sir. Lovely Very nice, story. very nice. Very nice Thank you. story. Very poignant, very.
Thank you, sir, for a very nice story. Now Thank you. let's welcome Kapil Nair साहब, जिनके बारे में ये कह सकती हूँ, आपके हर लफ्ज जैसे सम्मोहित करते हैं, भावनाओं को छूकर तरंगित करते हैं, तारीफ क्या करूं, भाव रस की गंगा बहाते हैं, जज्बातों को समेटकर एक मिसाल कायम करते हैं। आपके पास लफ्जों का खजाना है, क्या दूं मैं आपको नजराना, मालिक की रहमत बरसती है आप में, आपके हुनर से वाकिफ है ये जमाना। वाह 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 वाह, what a nice। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दीजिए आपने, बहुत बड़ी बातें कह दी। जिनको मैं जानती हूँ उनके बहुत बारे में शुक्रिया। कुछ लिख सकती हूँ, जिनको नहीं जानती उनके बारे में लिखना मुश्किल था, पर आपको थोड़ा जान लिया तो लिखा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कपिल जी, आपके बारे में अंशु जी ने कहा और मैंने अभी आपके एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी, ए जिंदगी गले लगा ले। तो दोस्त अब तो वर्चुअली गले लगा सकते हैं, बस अब ऐसे ही लगे जब तक ये कोरोना नहीं जाता। बड़ी वाली जप्पी यहीं से हो जाए, वर्चुअल वाली है यहीं से बड़ी वाली जप्पी। बस सर, टाइम पास करते रहते हैं आजकल, लॉकडाउन टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है बस। चलिए अभी सिलेबस की बात करते हैं, अपने स्टोरी टेलिंग पे आते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। और जो जानते हैं उनको ढेर सारा प्यार। और डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं साहब? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बस प्यार ही प्यार है। हम सब लोग प्यार बांटने के लिए और प्यार बटोरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज की कहानी मेरी शुरुआती कहानियों में से एक है और थोड़ी सी सीरियस नोट पे है। इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जहां पे भावुक होना बहुत नेचुरल है, तो एक दुनिया से घुमा के लेकर आऊंगा मैं आपको अगले 6 मिनट के अंदर। इस कहानी का नाम है मैं भी। तो जरा शुरू करता हूं मैं। स्वागत है। ये कहानी है एक छोटी सी सिम्मो की, जिसे उसके पापा बेटा कहकर बुलाते हैं। इसलिए नहीं कि उसने बेटी होने का कोई गम है, पर इसलिए कि वो कहते हैं कि अपनी छोरी के छोरों से कम है। वो एक बेटे से बढ़कर है। वो स्कूल में तो लड़कों से अच्छे नंबर लाती ही है और घर में भी माँ का हाथ भी बटाती है काम में। वो बच्चों को निकलती है पढ़ाई करने के लिए, सपनों की दुनिया, अपनी घर की गांव की छोड़कर दिल्ली शहर में। इस शहर में उसे बहुत लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, बहुत सी आदतें भी उसके पास से होकर गुजरती हैं, अच्छी बुरी। पर उसे पता होता है कि वो पापा की बेटी ही नहीं, वो पापा का गुरूर है, उनका स्वाभिमान है, और वो कोई गलत काम नहीं करे। वो आगे बढ़ती रहती है अपने सपनों की दुनिया में। उससे लोग कहते हैं कि बेटा, इस शहर के लोग अच्छे नहीं हैं, रात को कभी अकेले मत जाना इन सड़कों पे। अब सर्दियों में तो इस शहर में शाम होने से पहले ही रात हो जाती है। वो सबकी सुनती है और कभी कभी अंधेरा होने के बाद किसी लड़के के साथ भी सफर करती है। जी तो उसका भी करता है कि उन सब वहशी दरिंदों की आंखें नोच के फेंक दे, या ज्यादा नहीं तो एक करारा सा थप्पड़ मारने का तो बहुत मन करता है उसका। पर उसे पता है कि उसे लड़की नहीं, तू चीज बड़ी है, मस मस या चिकनी चमेली बोलने वाले लोग उसे शिकार समझ के टूट पड़ेंगे उससे, अगर उसने एक भी आवाज उठाई तो। उसे यह भी पता है कि इस गली में चलने वाले बाकी सारे कुत्ते सिर्फ भौंकना जानते हैं, और जब उसे जरूरत पड़ेगी वो या सिर्फ चुपचाप देखेंगे या अपने अपने रास्ते चलते बनेंगे। आए दिन अजीब सी डरा देने वाली खबरें रोज पड़ती है वो। रोज शाम को बस स्टैंड तक जाते हुए अपना पेपर स्प्रे पकड़ के चलती है सड़कों पे। पर कल सिमरन बस स्टैंड तक नहीं गई, वो घर वापस भी नहीं गई। वो मोमबत्ती जलाकर बस स्टैंड की तरफ नहीं, इंडिया गेट की तरफ चल पड़ी। उसकी जैसी कई लड़की, कई सारे लोग अपने हाथों में मोमबत्ती की मशाल लिए आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ ही इंडिया गेट ही नहीं, पूरी दुनिया के हर गेट पे दस्तक दी गई और सवाल पूछे गए कि इंसान इतना बड़ा हैवान कब बन गया। उस रोते हुए अपने भगवान और अपने अल्लाह की
याद करते हुए रहम की भीख मांग रहे थे और कह रहे थे कि या खुदा बचा ले इस बच्ची को, बचा, क्योंकि इंसानियत तो मर चुकी है इस देश में, तू प्लीज इसे तो बचा ले। वो बच्ची नहीं बचती। समय गुजरा, आज अपना इंडिया एक और क्रिकेट मैच जीत गया। क्या खेला था हार्दिक, वाह मजा आ गया यार। ये खबर प्राइम टाइम की सुर्खियां बन गई और हर दिल के कोने में जलती हुई निर्भया की चिता बुझ के राख हो। अपने वो रामू काका सब कुछ भूले तो नहीं, पर सारी दुनिया को कोसते हुए फिर वापस रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए। और अपने वो रवि भैया है ना, वो देश की गंगा को साफ करने की बातें करके हरिद्वार गए थे उस दिन। वो वहीं पर उसी में अपने पाप धो के फिर उसे गंदा करके हाथ जोड़े अपने घर को वापस चले गए। थोड़ा वक्त और गुजरा और सिमरन की नौकरी लग गई। ऑफिस में उसके बॉस को लगता था कि जिस लड़की को अपने करियर में आगे बढ़ना है तो उसे बॉस के ऑफिस में, कभी बाहर किसी रेस्टोरेंट में, कभी क्लब्स में दारू पी के उसके साथ डांस करते हुए, तो कभी ऑफिस ट्रिप्स के नाम पे छुपे बंद कमरों में उसके साथ टाइम तो गुजारना ही पड़ेगा। उसे ऑफिस अटायर के नाम पे बदन से चिपके चिपके कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे और इंपॉर्टेंट डील्स क्रैक करने के लिए क्लाइंट्स को बाय हुक और बाय क्रुक पटाना भी पड़ेगा। ऐसी थोड़ी मिलेगी उसे करियर ग्रोथ। ये देख के उसके बचपन का वो वाकया याद आ गया। वो 9 साल की थी। वो उस दिन स्कूल से वापस आकर नीचे खेलने गई थी तो बिल्डिंग के गार्ड अंकल ने रेडियो लगा रखा था और रेडियो में वो पुराना वाला गाना चल रहा था, ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई बहुत अच्छे, क्या बात हुई। वाह वाह, क्या बहुत अच्छे। गार्ड अंकल ने उस दिन एक नया खेल बताकर न जाने क्या क्या खिलवाड़ किया था उसके साथ और कह दिया था कि ये बात किसी से ना कहना। आज भी वो गंदा खेल याद करती है तो उसके अंदर छुपी बच्ची सहम जाती है। अब क्या करेगी हमारी सिमरन? आगे की कहानी आपने खुद को बतानी है और अच्छी ना लगे तो उसे मिटा के एक नई कहानी बनानी पड़ेगी। आंकड़े कहते हैं कि हर इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जाने अनजाने में अपनी लाइफ में सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर चुका होता और अक्सर वो कुछ नहीं कह पाता। उन सब लोगों में से एक मैं भी हूं और आप शायद जानकर भी खुद को याद नहीं दिलाना चाहते, पर आप भी हैं। हम सबका फर्ज बनता है कि हम मिलकर इस अपराध के अगेंस्ट खड़े हों और जो लोग इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं उन्हें जितना हो सके सपोर्ट करें। मी टू मूवमेंट को बेमौत मरने ना दें, आगे आए। अब चुप ना रहें, अब चुप ना रहें। शुक्रिया दोस्तों। वाह बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने रुला दिया सर, बिल्कुल। What a, बहुत ही मार्मिक। what a presentation, what a presentation. बहुत I'm शुक्रिया। reminded of, I'll take 1 minute, Kapil. I'm reminded of Aristotle, who said, a good story is a story which has well-defined beginning, well-defined middle, and a very well-defined end. And Yes. today we had a very good story, which was defined by Aristotle. Hats off. A very big round of applause to you. Many thanks to you. बहुत बहुत शुक्रिया। Many thanks to you. And this story is Expression. very much relevant today's time. Actually, we are able to relate. We were able to see through your expression. It was visualized. You know, it was a powerful impact. The way you were speaking, and we were able to visualize the Simran.
Who's Simran? Exactly. We could feel the story by Yeah. his really nice presentation. Yes. अंशु Many जी, thanks to all. बहुत बहुत शुक्रिया. ना सिर्फ अल्फाज बढ़िया थे, बल्कि उनको जो कहने का अंदाज था ना, वो भी मतलब बहुत जैसे सुपर. जी सुपर. Actually, रुला दिया. उन्होंने रुला दिया आज तो. Yeah, absolutely. Yeah. So next is my number, but my heart is pounding so much with Kapil sir's story that I am passing my turn and passing it to some other buddy because I am not in the position to speak. So let's welcome Saz Khan sir. उनके बारे में उनकी शाला खान जी और साज खान की चर्चे सारे जगह पे है, तो उन्हीं को ये करके कहती हूँ कि बस सुना था कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, पर आप दोनों की इबादत चाहर देखकर यकीन हो जाता है. ईश्वर करे यह जोड़ी जन्म जन्म तक यूं ही आबाद रहे. सुनहरी रंगों से चित्रकारी, शब्दों के फूलों से जीवन गीत गाते रहे. हर मुश्किल हर खुशी में आप दोनों साथ साथ रहे. वेलकमिंग साज खान, द मैन बिहाइंड द इटर्नल लव ऑफ साला खान. अल्फाज आपके सबसे जुदा, शब्दों को बना देते हो खुदा. प्लीज वेलकम साज खान सर. Thank you very much. Thank you very much for your kind words. Today's story is not going to be any different, but it might have, a little bit of drama as well. The title of the story is called Meeting My Hero. I was born in Delhi, and I was no different to any one of you. I was born in a typical Indian family, and the day when I was born, my fate was debated and planned. My father wanted me to be an advocate, my mother as a doctor, my grandfather as an engineer, and my uncle as an IPS. I was no different like any one of you. I dreamt of becoming a cricketer, a film star, a movie star, or TV serial star. So many of things were there. My favorite character were Hanuman from Ramayana and Krishna from Mahabharata. And I love, and I was trying to play. The only thing which I want to achieve in my life is to play like the god of cricket. Any guesses? Who was the god of cricket? Tendulkar was Tendulkar. So Sachin. So Sachin was the god of cricket, and he was my ideal. After Mahabharata and Ramayana was over, the only goal left in my life was to play like my hero. I started imitating him, with the tennis elbow on, cut, pulls, breaking the glass in my neighbors, in my home. So that even I also started following his mannerism. The mannerism, like the way, he moves his shoulder and, move his shoulders, the legs. So I was so close watching him. As he grew professionally, not in size, I grow in size. I started navigating my inning and ducking and bouncing and pulling the bouncers for becoming engineer, doctor, IPS. But I could not save myself from the googly of commerce, and then had to end up doing the chartered accountancy. And there I started the training called articleship. With the help of this training, I managed to move across the India and got the opportunity of seeing the Sachin Tendulkar playing at different grounds in India. But friends, I could only watch him sideways because the articleship stipend was so poor. I could only buy a very poor tickets, which can allow you a sideways only. As we grow professionally, I moved to London in year 2006. Indian team tour England 2007 summer. And the first game was scheduled to be played at Lord's. I dreamt of watching Sachin Tendulkar playing at Lord's, scoring the 100 many, many times in my life. I could not lose this opportunity. I bought the ticket in black and white on day 2 with the expectation to see Sachin Tendulkar playing and scoring the 100. But friends, he did not bat on that day. I only managed to watch him fielding. I stood many, many hours in front of his hotel in London, but I could not find any glimpse of him. That was the last I saw him on that tour, and only managed to watch him on the television. As we grow professionally, he scored 99 hundreds and become very close of getting the 100 international 100 first time in the history of cricket. I also got 2 babies with 1 wife. I was prepared this time. I bought the ticket at both Oval and Lord's, as I wanted to watch Sachin Tendulkar playing.
He could not get 100 at Lords, neither in the first inning or second inning, and the match was drawn. 4 test match was scheduled at Oval. I saw him scoring 91 and praying to the God, please let him score 100 runs, 100 runs. But friends, he could not get the 100 runs. I saw him from one side of the pavilion, but my dream of watching him closely is still not fulfilled. I was desperate and prepared better this time. I bought the ticket for a tour game at Canterbury, which was close to my home. That happened to be on 26th of August, and that day was supposed to be my wife's birthday as well. So the plan was to watch the game and went for a dinner. On that day, since morning, it has been raining, constantly raining, as the God was also crying on the day when my wife was born. I kept on praying that game should be on. My wife kept on praying game should not be on. At friends, around 7 p.m., the game was reduced from 50 overs to 20 overs, weather improved, and it was announced the game will be on. I rushed. I grabbed my baby, my bat, my camera, and dragged my wife into the car and drove like mad. There was chaos. Traffic was everywhere. Water was everywhere. Somehow I reached the ground. What I found, the gates were closed and there was no place to park. I left the car at the pavement and dragged my babies with my wife and rushed to the gate. I requested the guard, please allow us, please allow us. He said, as per the rules of the game, you are not allowed to get in. I kept on crying and requesting him. My wife saw me weeping and she started in an Indian way, the dramas she used to watch. Brother, let us in, please let us in. Somehow we managed to get in. What we saw, there was no seats close to the pavilion. Every single bit was occupied. We sat wherever we found the place. The game was getting close. I said to myself, enough is enough of this English delicacy. Let's try the Indian way. I grabbed my babies on the both sides, took the arm of my wife and started jumping like a kangaroo from one chair to another chair and reached very close to pavilion. And there, friends, what I saw the God of cricket himself, Sachin, Sachin. I shouted, Sachin, Sachin, Sachin. And he looked at me with a smile. That gave me encouragement. I started moving close. There was only, by the time the game was over and players along with Sachin Tendulkar moved into the pantry area, there was only one little thing left between me and Sachin Tendulkar, and that was a tiny glass. I kept on waving. Guard kept on pushing us. We were trying the Indian ways. Bhaiya, please, brother, please. I saw Sachin Tendulkar eating chicken. I thought he was a vegetarian. Then I realized, let him focus on chicken and I should focus on Sachin Tendulkar. I kept on waving, and I saw my wife was waving Dhoni. I glared at her and she started waving along with my daughter to Sachin. Friends, Sachin saw us with my babies on both sides, my wife, and he waved us to come in. And we went into the pantry area. That was the moment I was waiting all my life. He handshake and give the blessings to my babies. Then I realized, God, I left the camera in my car and my phone also fell somewhere while I was jumping. I could not take the photograph on that day, but the memories of meeting my hero, the God of cricket, is going to remain with me forever and be cherished every now and then. Thank you very much. That was the story when I met my hero. Wow. Nice, very nice. Very nice story and a very happy story. आज जी हम समझ सकते हैं आपकी शिद्दत, आजकल आप कैसे शैला जी को मिस कर रहे हैं, वो इंडिया में फंसी हुई। यस वो लाइन बहुत अच्छी थी, 2 kids with 1 wife। नहीं, शायद से भी पूरा आनंद ले रहे हैं मौसम का, पुराने फोटो निकाल के बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम भी फॉलो कर रहे हैं आपको। कब तक आपका ये जो नदी के 2 किनारों वाला मामला है कब समझता है? जोशीर शाह नवाज बहुत अच्छे, बहुत जी जी ज़रा नवाज़े सर, बहुत अच्छे। Okay, so let me go by my story. The title of my story is Tamacha. अरे कालू, अभी आया है?
साला अब क्यों आया? कौन करेगा काम? तुम्हारा बाप? इतनी देर से क्यों आए हो? कालू ने थर्राते हुए कहा, माफी माई बाप, मेरी माई बहुत बीमार है, उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा। तेज ज्वर में रात भर कालू कालू पुकार रही थी, कैसे छोड़ देता। सुबह दवाई लाकर पिलाया हूँ, फिर सोई है तो मैं भागता हुआ आपके पास आया हूँ। मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए और कुछ पैसे भी, ताकि माँ का अच्छे से इलाज करा पाऊं। धनीलाल को कालू का एक भी दिन छुट्टी गवारा नहीं था। उन्होंने कहा, माई को गांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दो, फिर कोई छुट्टी का दरकार भी नहीं होगा और मुफ्त में इलाज भी हो जाएगा। कालू बहुत ही ईमानदार और कर्मठशील नौकर है। वह 4 आदमियों का काम अकेला ही निपटाता है, वो भी पूरी तल्लीनता और सफाई के साथ। यह बात धनीलाल सेठ को भी भली भांति पता है। सेठ धनीलाल का अपना एक बहुत बड़ा शहर के बीचों बीच सराय खाना है, जिससे लाखों की आमदनी होती है। कालू सराय खाना के बगीचों को फूलों से सुवासित रखता है। पूरी सराय खाना के हर कमरों को चकाचक साफ और छोटी बड़ी सभी कामों को करता हुआ मालिक का सबसे विश्वास पात्र नौकर है। कालू बोला, नहीं सेठ जी, यह मुझसे नहीं होगा। मैं जब भी बीमार पड़ता था, रात रात भर जागकर माँ मेरी सेवा किया करती थी, पट्टी देती थी, मेरी उल्टी को साफ करती थी। मैं जो भी खाना चाहता था, कैसे भी करके कहीं से भी लाकर मुझे खिलाया करती थी। फिर आज उसकी लाचारी, बीमारी और बुढ़ापे में अकेला कैसे छोड़ दूं? माना मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन माँ से बड़ी संपत्ति मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप तो अमीर लोग हैं, टफी की सेवा करने के लिए नौकर रखते हैं, लेकिन मेरी दुनिया माँ के इर्द गिर्द ही बसती है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं आज भी वह दिन नहीं भूल पाता जब चाचा चाची आपके आगे कितना गिड़गिड़ाए थे, कितना रोए थे, तड़पे थे। सराय खाने के पीछे गैरेज में रहने के लिए भी वह तैयार थे, कितना रो रहे थे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। आपके सामने हाथ जोड़े, अनुनय विनय किया, मालकिन के आगे भी कितना रोए, चिल्लाए, फिर भी आप लोगों का दिल नहीं पसीजा। आपने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि सराय काले में आने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी होगी, और उसी परेशानी और अपने व्यापार का हवाला देकर आपने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया था। इतने बड़े सराय खाले के मालिक के पास एक छोटा कमरा माँ बाप के रहने के लिए नसीब ना हो पाया। माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन टफी के रहने के लिए एक बड़ा एसी लगा हुआ कमरा है। चाचा चाची के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं। आपने अपने जन्म देने वाले माँ बाप को ही ठुकरा दिया, और चाचा चाची इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1 महीने के अंदर ही उनके दिवंगत होने की खबर आई थी। मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं अपनी माँ को बीमारी के हालत में सरकारी अस्पताल में छोड़कर पैसे कमाने के बारे में सोचूं। सेठ धनीलाल की आंखें शर्म से झुक गई थी। उनकी आत्मा आज उन्हें बहुत धिक्कार रही थी। शायद कालू ठीक कह रहा था। आखिर वह जन्म से ही चाचा चाची के संस्कारों के छांव में बड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो आज उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ही मुझे इतना कुछ सुना गया, नहीं तो इस कालू की औकात ही क्या है। कालू की बातें सेठ जी के गालों में जोरदार तमाचा मार रही थी, और सेठ जी बुद्ध बनकर खड़े सोच रहे थे। धन्यवाद। Very nice, very nice. बहुत बढ़िया गाना। What a depiction of a character. बहुत अच्छे अंशु जी, बहुत अच्छे। Thank you, sir. Thank you. Now let's welcome रश्मि मान सिंगानिया जी from आगरा यूपी। इनके बारे में, सुबह का चढ़ता नूर है ये, रात का ढलता गुरूर है ये, चांद की तरह गुलजार है ये, बहारों की तरह हयात है ये, अब और क्या कहूँ, बहुत ही कमाल लाजवाब है ये।
बहुत शुक्रिया। Wow, so nice, so nice. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद इतनी खूबसूरत लाइनों के लिए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, और मैंने आपको बिना देखे हुए लिखा है तो इसीलिए शुक्रिया। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है माँ को खत। मेरी इस कहानी की पृष्ठभूमि तब की है जब डाक का अधिक चलन था और टेलीफोन शहर के कुछ बड़े बाबुओं के पास ही था। मेरी कहानी माँ को खत। मुझे इस गांव में आए हुए केवल 1.5 महीना ही हुआ होगा और गांव की मुखिया मुझे मात्र 1500 की तनख्वाह पर अपनी खेती के हिसाब किताब के लिए शहर से लाए हैं। गांव बहुत छोटा है पर सुंदर है। गांव के बीच में एक बाजार है। मैं एमकॉम पास हूं, ये खबर पूरे गांव में फैलाने में डाकिया बाबू का बड़ा हाथ है, जो हर मंगलवार और शनिवार को सुबह डाक लेने और डाक देने गांव आते हैं। डाक की वो लाल वाली पेटी नत्थू की चाय की दुकान के पास रखी है। आज शाम को मुझे न काम से आते वक्त बहुत देर हो गई। बाजार बंद हो चुका था। घर पहुंचकर मैंने सीढ़ियों पर देखा 8-9-10 साल का एक बच्चा बैठकर सुबक सुबक कर रो रहा है। उसने मुझे देखा और भागकर मेरे पास आया। बोला, बाबूजी बाबूजी, मुझे अपनी माँ को खत लिखना है। लिख दो ना। मैं बहुत थका हुआ था। मैंने कहा कल आना। साइकिल को स्टैंड पर लगाकर मैं घर के अंदर चला गया। नहा धोकर आया तो सोचा अपने लिए एक कप चाय बना दूं। रसोई में गया तो देखा वो खिड़की पे खड़ा है। उसने कहा, बाबूजी लिख दो ना। पता नहीं उसकी आंखों में क्या था कि मैं खुद को रोक न सका। कागज और कलम लाकर मैं आंगन में आ गया। तख्त के एक किनारे पर मैं था और दूसरे पर वो। मैंने पूछा, किसको लिखना है? उसने कहा, माँ को। मैंने कहा, अच्छा। उसने बोलना शुरू किया और मैंने लिखना। उसने कहा, माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम कैसी हो? खुश ही होगी बाबा के पास जो हो। तुम्हारे जाने के बाद चाची ने मुझे घर से निकाल दिया, पर तुम चिंता मत करो। अब मैं नत्थू की दुकान पर चाय की कप धोता हूँ, पूरे 5 रुपए कमाता हूँ। 1.5 रुपए में से 1 पाव और 1 कप चाय मेरे लिए आ जाती है और 1 पाव मोती के लिए। मोती? अरे माँ, मोती, जिसके साथ मैं रात को सोता हूँ। उसके शरीर की मुलायम बालों की गर्माहट मुझे तुम्हारी गोद की याद दिलाती है। हम दोनों तुम्हें रोज देखते हैं। तुम कहती थी ना, चंदा मामा के पास सबसे चमकता हुआ सितारा मेरे बाबा है, तो उसके साथ वाला सितारा तुम हो ना? सहसा मैं ठिठका। मैंने उसकी ओर देखा, पर वो बोलते ही जा रहा था। उसने कहा, पता है माँ, आज मुझसे 2 कप टूट गए। नत्थू चाचा ने कुछ भी नहीं दिया। अच्छा हुआ तुम बाबा के पास चली गई, नहीं तो चाची तुम्हें सारा दिन काम कराती और मारती थी। पर मुझे भी तो अपने साथ ले लो माँ। ले जाती माँ। तुम अपने कालू को भूल गई माँ?
उसका गला सूख गया और उसका चेहरा आंसुओं से गीला था। उसने दोनों हाथों से आंसुओं को पोंछा और बोला, बाबूजी, ये मुझे दे दो, मैं उस लाल पेटी में डालाता हूं। मैंने खत को लिफाफे के अंदर डाला और उसे बोला, अरे इसके ऊपर पता भी लिखना पड़ता है, पता तो बोल। उसने कहा, खुला आसमान, चंदा मामा का घर, सितारों वाली गली, कालू की माँ बाप। मैंने कहा, अरे ये तो अभी भी नहीं जा सकती, इसके ऊपर स्टाम्प जो नहीं है, मैं शहर जाऊंगा और इसके ऊपर स्टाम्प लगाऊंगा और ये शहर से जल्दी पहुंच जाएगी। उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। उसने झट से कहा, ठीक है बाबूजी, अच्छा मैं आपके लिए एक कप चाय बना लाता हूं, और झट से कहता हुआ रसोई में चला गया। मैंने उस खत को अपनी माँ की चूड़ियों के साथ उस छोटे से बक्से में रख दिया जो अनाथ आश्रम छोड़ते वक्त वार्डन ने मुझे दिया था। उसने चाय का कप लाकर टेबल पर रख दिया। मैंने बड़ी हिम्मत से उसके पास जाकर कहा, मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए? उसके चेहरे पे डर और हैरानी के भाव थे। मैंने कहा, मोती भी हमारे साथ रहेगा। वो खुशी से झट से मेरी टांगों से लिपट गया। मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। मैं अभी मोती को लेकर आता हूं, ये कहता हुआ झट से भाग गया गली की ओर। मैंने चाय का कप उठाकर आंगन में आया, आसमान की ओर देखा। कालू की माँ, मेरी माँ मुस्कुरा रही है और मेरी आंखों से मेरे रुके हुए आंसू बहने लगे। मेरी कहानी दोस्तों मुझे यही सिखाती है कि इस दुनिया में ईश्वर ने हम सबको किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है, लेकिन कभी भी ऐसा लगने लगे कि ये जीवन किसी काम का नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ हो चुका है, तो दूसरों के लिए जीना शुरू करें। Very nice story. Superb. What a captivating story. You grabbed everybody's attention into you. Yes. True. Thank you. Very true. Thank Yes. you. माँ की खत तो सबको आंसू ला के ही दम लेगी और उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छे। जो आपने खाका खींचा ना उन लोगों का, आपके प्रोटैगनिस्ट का, मेन कैरेक्टर का, और फिर कालू का, साथ में मोती का, बेहतरीन। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी धन्यवाद। थैंक यू पीआई जी, जिसने मुझे, आई थिंक मैंने लास्ट ईयर आफ्टर 20 इयर्स के बाद मैंने स्टोरी टेलिंग ज्वाइन किया था, और आई थिंक कॉलेज के बाद मैंने ज्वाइन किया था, और आज अगेन मुझे पीएल जी ने मौका दिया अपनी बात कहने के लिए। थैंक यू सो मच पीएल जी। That's the very purpose of PLG कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, the people who are residing in Oman, and we do not have any opportunity. We did not have earlier any opportunity and any stage for presenting ourselves. So that's the very purpose of forming PLG, to give the local poets an opportunity to hone their skills, to rediscover ourselves. In your case, rediscover ourselves. Yes, Anshu ji. इसीलिए शायद वो सैलरी 1500 है अभी। Let's welcome Kapil Batra साहब. He is a chartered accountant by profession. कविताएं रचते हैं पंक्तियों में ढालकर, भावनाओं को सजाकर, खुशियां बिखराकर, संदेश देती हुई, जीवन की अच्छाइयों को अपनाकर, कुरीतियों से लड़ती हुई, शब्दों को औजार बनाकर. Please welcome Kapil Batra साहब from Bahrain. बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तारुफ के लिए, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। मेरी कहानी भी थोड़ी भावुक किस्म की ही है।
तो मैं शुरू करता हूं। इस कहानी का शीर्षक है दूर, बहुत दूर। यादें कभी मीठी, कभी कड़वी, कभी सुखद तो कभी भुला देने वाली सबके पास होती हैं, आपके पास भी होंगी। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूं। चलिए शुरू करते हैं मेरी दादी और नानी से। मैंने असल में अपने दादा और नाना को देखा ही नहीं। उन दोनों को शायद मालूम था कि ये बच्चा कितना बदमाश होगा, सो मेरे आने से पहले ही वो चले गए दूर, बहुत दूर। मेरी नानी और दादी दोनों महिलाएं देखने में बिल्कुल अलग थीं। मेरी दादी बहुत कद काठी में मजबूत महिला, सांवली, और मेरी नानी, उन्हें देखें तो आप वो सिर्फ 4.5 फुट की रही होंगी, और मुझे नहीं लगता कि उनका वजन कभी भी 45 किलो से ऊपर रहा। और नाम था उनका गुलाब देवी। वो सचमुच अपने नाम की तरह थी। गुलाबी सफेद रंग, बिल्कुल एक गुलाब की तरह प्यारी। मैं उनको रोजी कह के बुलाता था। मैं उनका पसंदीदा बच्चा था। असल में मैं पसंदीदा सबका ही था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और सबका आज्ञाकारी भी। अब इस दुनिया में और कोई बात किसी की पसंद आए ना आए, आपका आज्ञाकारी होना बहुत फायदेमंद रहता है। सभी शादीशुदा पतियों से पूछ लीजिए आप। सबसे तो मेरे साथ हुआ क्या कि एक बार दादी, मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी नानी मेरे नाना से 2 साल बड़ी थी और मेरे नाना 6 फुट से ज्यादा लंबे थे। मैं आश्चर्य में रहा कि उस जमाने में भी। तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि रोजी, आपने ऐसे शादी क्यों की? तो उन्होंने मुझे 2 कारण बताए। बोले कि एक तो सब यही अंदाजा लगाते थे कि मेरी उम्र मेरे पति से 5 साल छोटी ही होगी, तो सब मुझे मेरी उम्र से छोटा समझते। और दूसरा ये कि तुम्हारे नाना मुझसे बड़े थे हाइट में, तो हमेशा सिर झुका के मुझसे बात करते। तो देखिए, उस उम्र में भी छोटा दिखने की चाह और आज्ञाकारिता सबको पसंद थी। तो रोजी यानी मेरी नानी अपनी छोटी छोटी बचत, कुछ सिक्के अपने रुमाल के कोने में कहीं बांध के रखती और मुझसे मिलने का इंतजार करती। कमल नैन, वो मुझे अपने जन्म के समय से ही यही नाम देने के लिए कहती थी, लेकिन मेरी फैमिली में एक और कमल था, सो वो कभी दे नहीं पाई, लेकिन मुझे वो कमल नैन कह के ही बुलाती थी। कमल नैन, मेरे माथे को दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो 90 साल की उम्र में एक नाजुक सी आवाज सिर्फ यही मांगती थी मुझसे, अपने लिए। और जब मैं उनसे बिछड़ता था तो वो सिक्का जो उनकी पल्लू में बना होता था वो मुझे देती थी। मैंने अभी भी उस सिक्के को संभाल के रखा है जो उन्होंने मुझे आखिरी बार दिया जब वो चली गई दूर, बहुत दूर। मेरी दादी रामसरनी देवी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी भी किसी मांगने वाले को निराश नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी मुझे कभी कपिल नहीं बुलाया, कपोल यूं बुलाती थी। अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिस बात के लिए वो चिंतित रहती थी वो था सुच्चम, यानी कि साफ सफाई, हाइजीन। आप कभी उनकी रसोई में चप्पल पहन के जाने की कोशिश करें, आपको सारा फर्श साफ करना पड़ेगा वरना आपको रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन ये यकीन कीजिए, आप वो फर्श साफ करेंगे क्योंकि उनकी बनाई हुई रोटी इतनी स्वादिष्ट होती थी।
एक दिन मैं किचन में गया और बिना किचन के पानी से हाथ धोए उनके बर्तन टच कर लिए। तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि तुझे आज बेटा खाना नहीं मिलेगा, और 2 घंटे उन्होंने मुझे बाहर खड़ा रखा। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि दादी क्या सचमुच आज खाना नहीं मिलेगा, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई कि बेटा, शहर के एक रईस आदमी के पास शहर का एक भिखारी गया और उससे बोला, अब अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। तो अमीर आदमी ने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने आदमियों को बुलाया और बंदे की खूब जम के पिटाई करवाई। सारा लाल नीला होके बेचारा जब उठा तो बोलता है, तो सेठ जी क्या मैं इसे आपकी ना समझूं? मुझे मेरा जवाब मिल चुका था, मुझे रोटी नहीं मिलने वाली थी। इतनी सख्त थी मेरी दादी। लेकिन बाद में रात में मुझे पता चला कि उसने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं उसका प्यारा बच्चा था ना। मुझे वो सुबह याद है, 12 मई 1982, जब वो अपने चेहरे पर पूरी तरह शांति लिए चली गई, दूर, बहुत दूर। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सभी सफलता और धन के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सोचें, क्या आप कहीं गहरे याद करते हैं निस्वार्थ स्नेह के वो क्षण? सोचिए, क्या आपकी अगली पीढ़ी के पास होंगे वो दिन, वो पल, जिनकी यादों को साथ वो अपना जीवन गुजार पाएं, जब आप होंगे दूर, बहुत दूर। नमस्कार। Very nice, very nice. ले गए, बहुत बढ़िया। दोस्तों के मन को समझाते हुए बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही अच्छा लिखा और बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी। बहुत अच्छा। अब हमारे तुफैल सर की बारी। I am highly obliged to you for giving me such an amazing and beautiful opportunity, this creative platform. I cannot describe my happiness in words. Thanks for boosting my mind to take creative challenges and to wake up from my sleeping mind. For you, how many words I will write, it will be very less. So I'll just say, सबको राह दिखाकर खुद पीछे छुप जाते हैं, दुनिया के सब ब्रह्मास्त्र को एक तर्कस में बांध लाते हैं, करते हैं सब कुछ पर शौर्य नहीं सुनाते हैं, सबको आगे खड़ा करते सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। भिन्न भिन्न पुष्पों से सजा रहे पीएलजी का बगीचा, इसके जैसा पूरे विश्व में नहीं रहे कोई दूजा। प्लीज वेलकम आवर तुफैल सर। बहुत अच्छे। Wow. So nice of you, Anshu ji. I do not deserve this kind of welcome. You deserve it wholeheartedly, so nice of you. Before I start, let us all give a big hand for a very nice comparing by Anshu Priya ji, and he has prepared for every participant. He has prepared some couplets and some lines, so that's a great to see. Dr. Shalini had started this ये परंपरा उन्होंने start की थी और अंशु जी उसको चरम पे पहुंचा रही हैं. So nice to hear those couplets for every participants. And very nice. And let me also thank Mrs. Anna Fansett here. She has been here throughout the program, and she although she might not have understood many of our participants, but she has been all the way all the time here, so that's great. Thank you Anna. And let me start. Let me start straight away with my story, Tikole. The title of my story is Tikole, meaning unripe sour mango. Please listen to a story carefully because I will be asking few questions. Sonu and Monu.
I told you many times, after lunch, rest a while. The mother shouted angrily on the brothers playing in the scorching sun in the middle of the courtyard of a 20th century house, which has large open courtyard in the middle, surrounded by long verandas and flanked by a dozen rooms. After lunch, rest a while. After dinner, walk a mile. Sonu and Monu repeated mother's usual sermon in chorus and walked past the long veranda in the bedroom at the rear of the house and jumped on the cot in unison. Slowly, boys, do you want to break the cot? Mom shouted even more loudly. Sorry, Mom. They told sorry, even though they did not believe that the cot could be broken by their jump. The boys knew how to stop Mom from passing sermons after sermons. They closed their eyes, pretending to sleep, but the sleep was miles away from them. As soon as Sonu, the younger of the two boys, aged 12 and 14, noticed the snores of the mom, he tried to jump out of the bed. Monu caught his hand and whispered, "Where are you going? If mom will wake up, she will punish you." Bhaiya, just want to get some tikole from the garden down the lane. So what does tikole mean? Kachi curry. Yes. The unripe sour mango. Yes. But there's a watchman. He will catch you. Moni warned him. He will be sleeping after lunch. No, don't do that. You may land up in troubled water. Monu warned again. Don't worry, I will manage. No, I can't allow. Mom will be so angry. Bhaiya, please. He pleaded innocently. I will get you also some. Sonu offered bribe to the elder brother. Monu nodded in affirmation. After all, Monu was also a little boy. What was his age? Anybody remember? I told in the beginning 12 and 14. Yeah. Okay, right. Both the boys jumped out of the bed and walked out of the room on the toes, trying their best not to wake up mom and get the wrath again. They crossed the long veranda, and then Sonu walked down the courtyard, opened the main door, and ran into the deserted street of sunny Sunday afternoon, very deserted, while Monu waited near the main door. Sonu climbed over the boundary wall and descended into the mango farm. His face was blushing with joy by seeing so many mangoes on the tree, inviting the onlookers to grab them. Sonu picked 1, 2, 3, 4 and pushed into his right trouser pocket. Then plucked another 4 and pushed into the left trouser pocket. And then picked 1 more and put on the shirt pocket. And then grabbed 2 in the right hand and 2 in the left hand. And he had another look at the tree. He was repenting. Why did not he bring a polythene bag? "Hey boy, what are you doing?" shouted the watchman from a little distance. Sonu started running. The watchman followed him. Sonu left the mangoes in the hand near the boundary wall and jumped out of the boundary wall. So how many mangoes was left with Sonu? Pocket 8. Pocket 8 and 1 in the... Nine. Yes. Correct. The watchman was old.
He could not climb the boundary, but he recognized Sonu. So he walked down to the main gate, opened the lock, came out of the gate, closed the gate back, and then he walked down the street, turned left, and reached Sonu's house and rang the bell. Bhaiya, must be watchman. Please save me. What can I do? Monu said. The bell rang again. Ting, ting. Bhaiya, quickly please do something. If mom wakes up, she will beat me completely. Please, please, please do something. Okay, said Monu, and opened the door. While Sonu was hiding in the nearby room, praying for his safety. He took 3 mangoes from Sonu and went out. Sonu hid in the storeroom. How many rooms were there in the house? I said in the beginning, the house had a courtyard surrounded by long veranda and flanked by 12 rooms. So 12 rooms. Right. Let's go ahead. Sonu was praying from bottom of his heart for his safety. First time in his life, he believed that God can really save somebody. Monu went out. Namaste, uncle. How are you? Monu pretended in front of the watchman as if he doesn't know anything. Your brother Sonu has stolen mangoes from the garden and just ran inside the house. Is it? Very bad. Give me your stick. Monu took the stick from the watchman, came inside the house, entered the room where Sonu was hiding. Sonu was hiding in which room? Storeroom. Yes. So a storeroom had some bags of rice and all those things. Monu started beating one of the rice bag. Shh, 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 and asked Sonu, cry. Sonu started crying. And he did it. Shh, shh, shh. After a while, the watchman called, Okay, leave it. Don't beat so much. After all, it's few mangoes. Come out, leave it. Monu took 3 mangoes from him, walked outside, gave him, this is your stick and these are your mangoes. So sorry, uncle, for his behavior. No. Why shall you say sorry? You are such a good boy. As the watchman turned, Monu ran inside the house, into the courtyard, past the veranda, into the storeroom. And Sonu said, thank you, Bhaiya, for saving me. Monu said, leave thanks now. First, give me half the mangoes. Right, so that was the story. But before I wind up, can you tell me how many mangoes? Please welcome Ajay Gupta sir from Canada. From 20 years, he is writing satire, poems, and he is very active in social activities. He is associated with radio and television. Lots of books are written by him and edited. He is TV host at NJ Digital TV. शुक्रगुजार है हम आपके, कैसे शुक्रिया करें। आप खूब लिखते हैं, हमें माला माल करते हैं। आपके लफ्जों की किन शब्दों में तारीफ करें, आपकी तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय गुप्ता साहब आपका। प्लीज वेलकम अजय गुप्ता साहब। धन्यवाद अंशु जी। सभी मित्रों को नमस्कार। पहले कोई ये कंफर्म कर दे, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। तो लॉकडाउन का माहौल है। लॉकडाउन के बाद एक शेर आना चाहिए मार्केट में, लेकिन उसका कुछ और चेंज हो जाएगा कि हम तो मशहूर थे अपनी तन्हाइयों के लिए, मुद्दतों बाद किसी ने पुकारा, एक पल तो रुक कर सोचने लगे, क्या यही नाम था हमारा।
खैर, ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि पीएलजी बहुत कुछ कर रहा है और हम लोग जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 28-30 लोग तो हर हफ्ते एक दूसरे का नाम जान ही जाते हैं। अरे भाई, ये शेर किसके लिए था? आ, किसके लिए था? मुझे लगा ये शेर किसके लिए था? अरे यार, अब आप ना प्याज के छिलके ना उतरवाएं। नहीं, मुझे ऐसा लगा। बहुत अच्छा। लॉकडाउन की परेशानियां हैं। जी जी। मुद्दे पे चलते हैं अब, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज मेरा बैकड्रॉप आपको नजर आ रहा है, कुछ पहाड़ी सा है, तो आप महसूस कर सकते हैं कुछ कहानी। हाँ, तो कुछ कहानी भी जरा सर्द सी लेके आया हूँ। शालिनी जी नमस्कार, आप भी पहुंच गए। डॉक्टर नीतू जी भी आ गई हैं, नमस्कार। कुछ लोग लेट से जुड़े, हमने जल्दी शुरू कर दिया था, आप लोग टाइम पे ही आए। ओके, तो आज की कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है सर्द खामोशी। सर्द खामोशी। सर्द खामोशी पहाड़ के आसपास से गुजरेगी। आसपास के पहाड़ी इलाके में शायद कहीं बर्फ पड़ी थी, इसलिए नेमीपाड़ा कस्बे में आज कुछ ज्यादा ही ठंड थी। वह अभी 6:15 बजे आकर ही तो बैठा था और 7 बजे ही सादगी भरी शाम तारों भरी ठंडी शाम में बदल गई थी। बदलने का तरीका उसका अपना होता था। अधिकतर तो वह शाम को 5 बजे ही आकर अपने इस मकान में बंद हो जाया करता था, पर क्योंकि सिर्फ मिडिल स्कूल की तनख्वाह से काम नहीं चलता था, इसलिए अब पिछले 1 हफ्ते से उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर तांगा, फिर पैदल घर तक। दिन भर ये आदमी इतना काम और परिश्रम करके थक जाता है, पर मुश्किलें ही तो हैं आम आदमी को खास बनाते हैं। मिलने वाली पगार में 300 रुपए मकान का किराया, फिर अपना खर्चा और घर पर माता पिता को भेजना, बहन की शादी में लिया गया कर्ज अदा करना और न जाने क्या क्या। मकान क्या था, 4 दीवारों के ऊपर सिरों को ढकने के लिए कुछ ईंट, गारा, लोहा आदि बिछा दिया था। एक खिड़की जो सुबह शाम सड़क पर पैदा होती थी और मरती जिंदगी के भी दर्शन कराती थी। इसी खुली खिड़की के पास बिना दूध की चाय लिए बैठना उसकी मजबूरी के साथ दिनचर्या बन चुकी थी। आज कोहरा कुछ ज्यादा था, फिर भी वह अपने आसपास फैली जिंदगी के प्रतिबिंबों को खोज रहा था। धीरे धीरे सामने के झोपड़े से रहने वाली एक औरत और उसके बच्चे की आकृति स्पष्ट होने लगी। फिर धीरे धीरे बच्चे की भूख से बिलबिलाती अंतड़ियों का दर्द उसे महसूस होने लगा। अभी तक माँ बेटा सामने रामदीन की बुझी भट्टी के कोयले निकाल अपनी सर्दी को दूर किया करते थे, पर पिछले 4 दिनों से लॉकडाउन में दुकान भी बंद थी। वह सोच रहा था कि आज वो कैसे अपनी रात काटेंगे। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और कुछ मांगने की भी। मामा, मामा, भूख लगी है। चुप हो जा बेटा, देख, भूख को दबाना सीख। अभी हम कुछ नया खाएंगे, कुछ नया पकाएंगे, फिर नया खाएंगे। थोड़ी देर चुप रह और सो जा। ना ना ना, बच्चे ने जिद की। वह सोचकर परेशान था कि मानवता इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। क्या भाग्य चक्र इतना अंधा हो सकता है कि इस बालक का रुदन उसकी अंतरात्मा को नहीं झंझोड़ता? क्या आज उसकी दया दृष्टि सिर्फ चढ़ते सूरज को ऊपर चढ़ाने के लिए है? क्या शाम की गरीब किरणों को उजला करना उसका कर्तव्य नहीं है? औरत और बच्चा 10-12 दिन पहले ही एक ऐसे छप्पर के नीचे रहते थे जो दिन में पर्यटकों को घुमाने वाले खच्चर खड़े करने के काम आती थी, पर अचानक से सरमाएदारी की नजर उन पर पड़ी और एक दादा ने उन्हें वहां से हटा बाहर किया। क्या उसे भी इन पर दया नहीं आई? उसका दिमाग सिर्फ यही सोच सोच कर परेशान था। आज वह चाहता था कि उनके लिए कुछ करे। जी हाँ, आज वह चाहने लगा था कि उनके लिए कुछ करे। इसलिए उसे फिर वही अपनी रोजाना वाली क्रिया दोहरानी पड़ी, जो नींद न आने के लिए या कुछ सोचने की स्थिति में दोहरानी पड़ती थी। जब उसे कुछ सोचना होता था, वह अपनी छत की कड़ियों को गिनना शुरू कर देता। वह सोचता था कि इन कड़ियों की संख्या इतनी ही क्यों है, एक कम या एक ज्यादा क्यों नहीं, और हमेशा एक स्वस्थ निर्णय पर वह पहुंच ही जाता था। कड़ियों का अंगणित उसके अंगणित से मेच खा जाता था। आज उसे कुछ ऐसा कर गुजरना था कि इन माँ बेटों को शांति दे सके।
अचानक वह उठा, सुबह के नाश्ते के लिए रख छोड़ी ब्रेड और अपनी रजाई उठाकर चल दिया। कुछ देर बाद खुद को उसने उस झोपड़ी के सामने खड़ा पाया। औरत उसे सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई और अचानक ही सकपकाकर उसकी ओर देखने लगी, अपने फटे पुराने कपड़ों से अपने शरीर को ढकते हुए। जी हाँ, वह उसी पुरुष प्रधान समाज का एक कोण नजर आया। वह उसी पुरुष प्रधान समाज का एक कोण नजर आया जिसने उसके माथे पर कलंक और गोद में ये बच्चा देखकर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। उसने धीरे से बच्चे को उठाया, ब्रेड खिलाई, रजाई ओढ़ाकर सुला दिया। औरत यंत्रवत सी उसे देखती रही। अब वह अपने कमरे में पहुंच गया था। आज की इस सर्द खामोशी से उसके माथे पर पसीने छलछला आए। शायद आज रात की नींद लाने के लिए उसे अपनी क्रिया में कड़ियां नहीं गिननी पड़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं गिननी पड़ेंगी और नींद आ जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, सुपर। धन्यवाद साहब। सुपर, बहुत बढ़िया। अंशु जी, यू आर देयर? आपके लिए अजय जी, आपने कनाडा में रहते हुए भी जो खाका खींचा है वो भी खासतौर पे आजकल की माहौल के लिए आपने सोच के उसको जोड़ के किया। कपिल जी कहते हैं ना, हिंदुस्तानी को बाहर ले आओ, उसके दिल से हिंदुस्तान नहीं निकाल सकते। नहीं जाता। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कहीं भी रहे, हिंदुस्तान तो दिल में जरूर बसता है। बहुत अच्छे अजय भाई, बहुत बढ़िया। प्लीज वेलकम शोभा शर्मा जी, जो इंडिया से हमें सुन रही हैं और अभी 11 बजने को हैं, तो लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सी इज ऑथर ऑफ फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन, ओनर ऑफ हर ओन यूट्यूब and has penned down many novels and books which have been published. उनके बारे में सुनते हैं लोग, आपको कहानियां पढ़ते भी हैं, सुनते हैं पाठक, वाह वाह करते भी हैं। कोई आंखों में नमी लेकर पढ़ता है, कोई पढ़ता हुआ आंसुओं के सैलाब में डूबता है। एहसासों की ऐसी जादूगरी देखी नहीं, कलाम की ऐसी कारीगरी देखी नहीं। प्लीज वेलकम शोभा शर्मा। थैंक यू अंशु जी, अंशु प्रिया, थैंक यू। वेलकम। आदरणीय लेखकगण, पढ़ूं मैं? जी जी जरूर जरूर। हाँ, आदरणीय लेखकगण, श्रोता भाई बहन, नमस्कार सबको। आज मैं आपके समक्ष अपनी कहानी पढ़ूंगी और मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, तो मेरी लेखनी में भी आपको बुंदेलखंड की माटी की झलक मिलेगी और आशा है कि कहानी पसंद आएगी। शीर्षक है इसका लोटा। राजेश्वरी की बेटी विभा का ब्याह तय हुआ था। राजेश्वरी मोड़े पर गद्दी लगाकर बैठी थी। बाएं का दर्द उनके समस्त जोड़ों को कमजोर कर चुका था, तो चला फिरी उनसे होती न थी। इसलिए महीने भर के लिए बेटे रमन ने गांव से माई को बुलवा लिया था। आज भंडार घर में रखे एल्यूमिनियम के बड़े बक्से खोले गए थे। उनमें से राजेश्वरी अपने मायके से मिले हुए 7 बर्तन वाले मुरादाबादी कलश का सेट, सुंदर सी फूल की थाली, पीतल का बड़ा सा कोपर, 2 सेर चावल भर जाए ऐसे कांसे का बेला, इसको छांट कर अलग रखवा रही थी। विवाह की ससुराल में ये नायाब बर्तन जरूर जाएंगे, बेटा इनको पॉलिश करवा लेना। माँ, अब इन पीतल के बर्तनों को कौन बरतता है? जैसे हमारे भंडार में बक्सों की शोभा बढ़ा रहे हैं, वैसे ही विवाह के यहाँ पड़े रहेंगे एक कोने में। बेटी ने प्रतिवाद किया। तो क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे दायजे में दिए थे, अब मैं भी अपनी बेटी को निशाने के तौर पर देना चाहती हूँ। सुना नहीं, ओल्ड इज गोल्ड होता है। बस तू तो इन्हें पॉलिश करवा देना। माँ की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए महीने भर के लिए माई आ गई थी। गरीब निसंतान माई गांव में ही झोपड़ी डालकर रहती थी। जब उन्होंने सुना कि बुलाया है, तो एक झोला में 2 धोतियां, कंघा, तेल और घिसी हुई एक साबुन की टिकिया लेके हाजिर हो गई। एक थाली, पतीली, बाल्टी, चमचा और तस्तरी, इतनी उनकी गृहस्थी थी। तब समेट कर अपनी पड़ोस की रज्जो बहू के रखाई, ताकि कोई झोपड़ी में घुसकर
चोरी न कर ले जाए। बर्तन निकालते हुए वह भारी नक्काशीदार लोटा निकल आया। ये इतना सुंदर लोटा कहाँ से आया माँ? विभा ने पूछा। पूछते ही माँ की यादों की पोटली खुल गई थी। राजेश्वरी ने अपनी यादों के झरोखों से स्वयं को सुर्ख लाल साड़ी पहने, कलाई भर भर काली चूड़ियां, साथ ही सोने के गहनों से लदी फदी लंबा सा घूंघट डाले स्वयं को देखा। वह हंसने लगी, बोली, मेरी बुआ इसे चावलों से भरकर ब्याह में सौगात देने लाई थी मेरे। इसी में छुपा था गुप्त दान का सोने का सिक्का जो तेरी दादी को दिया गया था। हाँ, उन्हें बहुत पसंद था यह लोटा। माई उस लोटे को बड़े प्यार से सहलाते हुए देर तक लिए खड़ी रही, मानो दादी उनकी आंखों में साक्षात आपसी हो। इमोशंस को समझने के लिए पढ़ाई के कोई कोर्स नहीं करने पड़ते। भावनाओं के पुल जब बनते हैं तो दिल से दिल को राह बड़ी आसानी से मिल जाया करती है। माँ ने भी अपनी पारखी आंखों से सब कुछ परख लिया। माई बुदबुदा रही थी। पुराने समय में पीतल के बर्तन उपयोग होते थे और सोना चांदी पहनते थे, मगर अब तो पीतल के नकली जेवर बनने लगे हैं, वही जो बहू बेटियां पहने घूमती हैं, और खाने पीने को प्लास्टिक के लोटा थाली बरतते हैं जो कैंसर के कारक होते हैं। एक तो प्लास्टिक का लोटा मेरे पास भी है, क्या करूं, सस्ता जो है, गरीब के लिए खरीदना आसान है बहू। लोगों के सोने रूपे जैसे मन अब प्लास्टिक में बदल गए हैं। संवेदनाएं बची कहाँ है? राजेश्वरी पैरों में लहसुन अजवाइन के तेल की मालिश करते हुए बोली, हाँ सच कहती हूँ माई। दर्द की वजह से वह ज्यादा चल फिर ना पाती थी, तो दुबली पतली कहरी माई ही प्राय चकर घिन्नी सी एक पांव से फिरती, सब काम समेटती रहती। धीरे धीरे दिन बीते, फिर विवाह ससुराल चली गई। ब्याह में कोई कमी न रही। रिश्तेदारों को माई ने ऐसे साधा था जैसे उनकी अपनी खुद की बिटिया का ब्याह हो। अब माई ने भी इजाजत मांगी। भरे पूरे परिवार को अपना मानकर इतने दिन से रहती आई थी। माई को भी जाते हुए अच्छा न लग रहा था, मगर जाना तो था। कितने दिन रह सकती थी? माँ ने मनाया था, माई यहीं रह जाओ, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। रह तो जाऊं, मगर मेरी झोपड़ी सूनी हो जाएगी। माई के मुख पर बेचैनी, परेशानी, असमंजस, संकोच के आते जाते रंग बिखरने लगे, मानो बदली के कारण आती जाती धूप छांव उनके मुख को छूकर निकल जा रही हो। दरअसल उनकी खुददारी आड़े आ रही थी। कभी हारी बीमारी भी होगी। ऐसे कैसे किसी के घर में सदा के लिए रह सकती हूँ? और फिर अपने खूंटे की आनी अलग होती है। बड़ी मुश्किल से बोल पाई, जिस काम के लिए आई थी बहू वह तो संपन्न हुआ, बुलाओगे तो फिर आ जाऊंगी। अच्छा माई, इस घर के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। राजेश्वरी ने विदाई में माँ बायना, धोतियों का जोड़ा, मिठाई के डब्बे, साथ ही रुपयों से भरा लिफाफा माई के हाथ में रख दिया। माई खुश तो हो ना? ऐसा तो कोई अपना भी न पूछे। भावुक होकर वे नम हुई आंखें पोंछने लगी। तुमने इतनी इज्जत दी बहू, बुढ़ापे में मुझे इससे ज्यादा क्या मिलेगा? आज अपनी संतान भी होती तो क्या पता यह मान मुझे दे पाती कि न दे पाती। अभी ये और रह गया माई, विवाह के ब्याह की निशानी, इसे संभाल लेना। माँ अपने हाथ में वही नक्काशीदार पीतल का लोटा लिए खड़ी थी। अरे इसे रखा नहीं क्या? माई हैरान सी झिलमिलाती इंद्रधनुषी मुस्कान से पूछ रही थी। नहीं नहीं, इसे तो किसी अपने के पास भेजना था ना निशानी के रूप में। अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, अब से आप प्लास्टिक के नहीं इसी लोटे में पानी भरकर पिया करना। माई की आंखों से आशीष झरने लगे। अच्छी भावनाओं को, स्नेह के दरिया को दिल से दिल तक राह मिल ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। का नाम लोटा रखा था मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सार्थक नाम था, उसमें कोई शक नहीं। आप सब बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। अंशु जी।
अंशु जी लाइन पे नहीं है शायद. Okay, right. Since Anshuji is not there, I will just take over. She is, I think, trying to come online, but her voice is not coming. So with this, we have come to the last storyteller of today evening, which is none other than our chief guest and a renowned storyteller who has been, telling a story all over the world at various platforms, and she has won accolades at many platforms. It's none other than Anna Fanzet. So please welcome her with a big hand. We would like to hear a few words from Anna and then over to her story. Please welcome. Hello everybody, I hope you can hear me. I hope so. Okay, there's movement, that's good. So first of all, I'd like to say thank you very much for having me here tonight. It's been a real honor and I really enjoyed listening to your stories. I couldn't understand all of them, but I loved the different expressions I heard, the cadence that I heard, the emotion, the energy that came through in the stories, even the ones I didn't understand. And you all did remarkably well telling online as well, because it's so much harder telling online than telling in person. So I've just been blown away by how fantastic you all were. And I wish I could understand more of the stories. But even without understanding, they were absolutely brilliant. So I've been asked just to share a short story with you today. And it's about a young boy called Michael. And he was halfway between the ages of the two boys in Tuffel's story, which means he must be 10 years? 13. 13. Yeah. Maybe I did the math wrong. He was 13 years old. You're on a story, Tufel Saab. You're 14. So Michael was 13 years old, and he had an older half sister who he always knew was a little bit odd. She was a little bit different. She wasn't like the other children. When she was out in the village, she was often very quiet and kept to herself and watchful. And in bright light, there was a glint, a twinkle of yellow in her eyes. And she would spend hours at home looking at the mirror, brushing her sinuous hair as it cascaded down her back. But her oddness didn't make Michael dislike her. The fact that she was a sister from a different father didn't make him dislike her. Her oddness, her difference, her half relation to him just made him love her even more. It made him even more protective of her, especially as he was entering his teenage years. So when a handsome stranger came to their house, when a handsome gentleman tried to court his sister, he grew nervous. He grew suspicious. He didn't want this man in his house. He didn't want this man speaking to his sister at all. And he didn't like her reaction. He didn't like her simpering smile, the way she twirled her hair when she spoke to him. Michael just watched this man and he thought, get him away from my sister. And after weeks of this, the handsome gentleman, the stranger, asked Michael's sister, her name was Aspen, asked Aspen for her hand in marriage. And Aspen said, I am too young to get married, but come again next year and maybe I'll say yes. So Michael had a year. He had a year to get his sister away from this handsome stranger that scared him so. And in that year, Michael tried to introduce his sister to different people. He tried to persuade her maybe she didn't even want to get married. He did everything he could to make her not speak to that stranger when he came back in 12 months' time, but none of it worked.
The 12 months came and went. Aspen hadn't married anyone else. He hadn't decided not to marry at all. And the strange, handsome, foreignish, different, scary gentleman was back at the house, and she was smiling again, and she was simpering again, and she was twirling her hair again. And this time when he asked her to marry him, she said yes. And Michael felt his heart sink in his chest. He just knew this handsome stranger was up to no good. And that night, Aspen went off with this stranger. She went off to get married to him. But Michael would not let it be. So he snuck out of the house. He took a bag. He took a knife with him. He thought he might have to fight. He took some food. He took a couple of coats. He slung the bag on his back and he crept out of the house and he followed the handsome stranger and Aspen. And he followed them as they walked away from the house, through the village and into the forest. And he watched as they came to a small lake in a clearing amongst trees. And he watched as a sliver of silvery moonlight came down upon them. And in the moonlight, to his horror, he saw the handsome stranger become larger and bigger and hairier and rip out of his skin to become a wolf in that moonlight. And he fumbled in his bag. He tried to find his knife that he had packed, and he was ready. He was going to run out. He was going to save Aspen. But when he looked again under the moonlight, he saw also that Aspen was growing larger and bigger, and she was breaking out of her skin. And in front of the wolf, instead of his sister, he saw a snake. And the wolf lunged at the snake, but the snake hissed and bit the wolf, and the wolf fell down. And the snake turned, and she slithered back into her own form. And she said, "Michael, I know that you were there." And he came out shaking. And she said, "Michael, my father is the king of the snakes, and I've been meaning to go back to him for many years, but I could not leave you until you were old enough to look after yourself. And when the wolf came last year, I knew if I left before I had taken care of him, he would cause nothing but danger to you and our parents. But now he is taken care of, and now you are old enough to look after yourself and them. So I am going to go back to my own father, and I will not see you again, brother, but I will love you always." And she turned herself back into a snake, and she slithered away. The end. That was a wonderful, painful finish of an exciting evening of the storytelling. However much we can praise Anna, it will be less. Absolutely, absolutely. The way she Means- utilized her gestures, her voice modulation, her face expressions, we have a lot to learn Means from her. without standing up, if you are able to do that much, Amazing. She was just Amazing. awesome. Amazing, amazing. Absolutely, absolutely. fully deserve to be chief guest. Yes, absolutely. Thank you, everybody. In fact, we are blessed to have her here on this virtual platform, and so nice of Anna that she agreed to to come to this virtual program. Despite being so busy, she had some presentations yesterday, and she's so busy with many programs. So we are really thankful to you to have you here, and you listen patiently to so many of the stories which obviously you couldn't understand, but